مرشد فرماتے ہیں جب دنیا اپنے نرم اور قبیلے بستر پر سو رہی ہے اس وقت بیٹھ کر آپ خدا اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو یہ سمجھنا کہ اس وقت خدا کا خاص فضل آپ کی جانب ہے، اس وقت خدا کی خاص توجہ آپ کی جانب ہے۔ یقین جانے کہ کوئی کروڑوں کی بلڈنگ میں اس وقت سو رہا ہے، کوئی ادبپتی آدمی اپنے نرم اور قبیلے بستر پر سو رہا ہے، اے سی کمروں میں بیٹھ کر کے وہ اے سی کی ہوا کھا رہا ہے، اس کے لاکھ درجے بہتر آپ کی شخصیت ہے، آپ کی حیثیت ہے۔ آپ اس گرمی میں گرم ہواؤں کو محسوس کرتے ہوئے حضور کی بات سن رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں۔ آپ سے اچھا اس وقت کوئی نہیں، آپ لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے سب حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت میں بیٹھے ہیں۔ کون ہے قاری شبیر حسن مربری، کون ہے ندیم رضا فیضی، کون ہے شہاب الدین ثقافی، کون ہے عبد المنان جمالی، کون ہے حسنین رضا فیضی، ہم کو مطلب نہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ لوگ حضور کی بات کرتے ہیں، حضور کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کو نوازتے ہیں جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرتے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں انہیں حضور نوازتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری ہبلی شہر کا، کرناٹکا میں ایک ہبلی شہر ہے، اس ہبلی شہر سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں مفتی سلمان اظہری، مگر آج پوری دنیا میں جس علاقے میں جاتے ہیں دیوانوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، فینس ان سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ پیروں کی نیند اڑ گئی ہے، جو پیر لاکھوں روپے کا سوٹ مان کر اسٹیج پر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مرید ہے تو سب کچھ ہے، مرید نہیں تو کچھ نہیں، ان کو لگا کہ مریدی پیری مریدی ہی سب کچھ ہے، مگر ان تمام خانقاہوں کے پیروں کی نیند اڑا دی مفتی سلمان اظہری نے اکیلے۔ کس بنیاد پر؟ ان کی مقبولیت اتنی کی ہو گئی، ان مشہور اتنے کیسے ہو گئے؟ انہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آگ میں چھلانگ لگانے کی بات بھی، چھلانگ لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ نبی کونین نے ایسا نوازا کہ آج جس علاقے میں چلے جائے کسی پیر کے 3 مہینے کا پوسٹر لگانے کے بعد اعلان ہو جائے اتنی بھیڑ نہیں جمع ہو پاتی ہے جتنی بھیڑ ایک عاشق رسول کی وجہ سے جمع ہو جاتی ہے، ایک عاشق رسول کی وجہ سے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق بہت بڑی دولت ہے۔ سنت مصطفیٰ کانفرنس اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، وہ بیٹا بھی جان لے کہ اگر تمہارے عقیقے میں اگر اتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں تو بڑا ہونے کے بعد تمہیں کس قدر کی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے بیٹے کے عقیقے میں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں تو میرا باپ بھی اپنی بساط کے مطابق جب میرا عقیقہ ہوا ہوگا تو اسی طرح کا خرچ کیا ہوگا۔ اتنی بڑی محفل نہیں سجائی ہوگی انہوں نے، مگر محفل حضور کی سجائی ہوگی۔ اس وقت دنیا میں اتنے پیسے نہیں تھے، آج دنیا میں لوگ پیسوں پہ نہیں کھیل رہے۔ اس وقت اگر کوئی محلے میں سائیکل خرید کر لاتا تھا تو پورے محلے کا آدمی اس سائیکل کو دیکھنے جاتا تھا۔ آج اگر اپنے گھر میں کوئی 4 ویلر کار گھسا نہیں رہا ہے پھر بھی کوئی جھانکنے تک نہیں جاتا ہے، دیکھنے نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج ہر آدمی پیسہ پہ کھیل رہا ہے، پیسہ کمانا آج کی تاریخ میں کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی مصطفیٰ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں بیٹھ کر آپ حضور کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسے ہی دیکھیں نبی کونین نے کروٹیں لیتے ہوئے آپ کو یاد کیا ہوگا تو آپ یہاں بیٹھ کر حضور کو یاد کر رہے ہیں، ورنہ آپ یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا ہے۔ جب غوث اعظم کی مرضی کے بنا کوئی غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی مرضی کے بنا مصطفیٰ کا نام کون لے گا؟ حضور کی مرضی کے بنا حضور کا جلسہ کون سجائے گا؟ نبی کونین کی مرضی کے بنا ان کی محفل میں کون بیٹھے گا؟ اگر ہم بیٹھے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی توجہ کا کمال ہے کہ اپنی قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ، نعرہ
नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात का नतीजा रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमने प्यार किया। हम प्यार नहीं करते होते तो भी दफा हमसे प्यार करते हैं। नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीने में मोहब्बत सीने में आई। हुजूर की मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में जला, ये हुजूर का एहसान है। वरना नबी कौन तो पूरी उम्मत के लिए रात भर आंसू बहाते थे। नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात भर मुस्तफा अपने अपने सजदों में अश्क बहाते थे। दाढ़ी शरीफ भीग जाती थी हुजूर की। इस उम्मत की याद में ये उम्मत जो कभी हुजूर को याद नहीं करती है। नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी कन्हाई में बैठकर मुस्तफा के बारे में सोचते नहीं। मुस्तफा जामिल अहमद के बारे में कभी हम अपने ज़हर-ओ-दमा को लेकर नहीं जाते। ड्रीम 11 में लोग टीम बनाते हैं, आईपीएल का मैच चल रहा होता है, लोग चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, चौराहे पर बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी बैठ रहे क्रिकेट की बात कर रहे हैं। धोनी ने कितना स्कोर किया, विराट कोहली की टीम जीतेगी हारी, वो कौन खिलाड़ी है, उसकी टीम जीतेगी हारी। हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, कौन सी फिल्म हिट हुई, कौन सी फिल्म में कौन सा विलन है, कौन सी फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस काम करती है, सिर्फ इसकी बात करते हैं। मगर हुजूर ने किस कदर हमारे ऊपर मोहब्बत बरसाई है, नबी कौन ने किस कदर एहसानात किए हैं। हम कभी हुजूर को याद नहीं करते। कौन है सलमान खान, कौन है विराट कोहली, इन लोगों ने, ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते। तुम इनको याद करते हो, मगर जिनको तुमको याद करना चाहिए उन्हें याद नहीं करते हो। सलमान खान तुम्हारा नाम नहीं जानता, सलमान खान तुम्हारे बाप को नहीं जानता, सलमान खान तुम्हारे खानदान को नहीं जानता है। मगर मदीने में जो मुस्तफा बैठे हुए हैं, मिशकात की हदीस से पाक है, नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में 2 किताब है। अपने सहाबा से फरमाते हैं, हल अंतुम तारिकून अम्मा हाज़ा में किताबा, क्या तुम जानते हो मेरे दोनों हाथ में कौन सी किताब है। नबी कौन के सहाबा फरमाते हैं, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, खुदा जानता है और उसके प्यारे मुस्तफा जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मेरे बाएं हाथ में जो किताब है, क़यामत तक मेरी उम्मत में जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, इसमें उनके नाम है, उनके बाप का नाम है, उनके खानदान का नाम है, उनके कबीले के नाम है। और ये पहले हाथ में जो किताब है, क़यामत तक मेरी उम्मत में जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, उनका नाम है, उनके बाप का नाम है और उनके खानदान का नाम है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जो मुस्तफा जिंदगी भर अपनी उम्मत के लिए तड़पते रहे, अपनी उम्मत को याद करते रहे हुजूर। अगर वो उम्मत हुजूर को फरामोश कर जाए, कभी अकेले में बैठकर मुस्तफा को याद कीजिए। नबी कौन ने किस कदर एहसानात किए। इतनी गर्मी आप ये समझते किस कदर गर्मी, 150 साल से इतनी 150 साल के बाद इस कदर गर्मी आई। चौक चौराहे पर बात हो रही है, लोग कहीं पर सुकून से बैठ नहीं सकते हैं, पंखे की हवा मिल रही है, वो हवा मिलने के बावजूद बदन के जिस्म के हर एक हिस्से से पसीना बह रहा है। इंसान का पसीना पूछ पूछ कर परेशान है। एसी कमरे में जाओ तो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, जैसे एसी कमरे से बाहर आओ लगता है दोज़ख में पांव रख दिया। मैं कहता हूँ गुनाह इस कदर है, जमीन से चिंगारी उठनी चाहिए थी, आसमान से शोले भड़कने चाहिए थे, शोले गिरने चाहिए थे हमारे सर पर। हमारा बच्चा खड़ा होकर पेशाब करता है, जवान होने से पहले पहले हमारा बेटा लड़कियों से नफाया करके, लड़कियों से अपना ताल्लुक अपने दिल को कनेक्ट करके वो ज़ना के कीड़े से अपने कान को दाग करते हैं। हमारा बच्चा बर्बाद है, हमारी जवानी बर्बाद है, हमारा बुढ़ापा बर्बाद है। सुबह शाम 24 घंटे, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक हम अपने कमरे में सोए हैं। सोने के बावजूद मेरी बीवी के हाथ में अलग मोबाइल है, मेरे हाथ में अलग मोबाइल है, मेरे बेटे के हाथ में अलग मोबाइल है। हर कोई अपने अपने मोबाइल में मसरूफ है, हर कोई अपने अपने मोबाइल में बिजी है। ये तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों का घर है ना। नबी ये कॉलेज में कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, यहाँ तो तिलावतों की खुशबू आनी चाहिए थी, यहाँ तो सजदों की कमालात की रोशनी होनी चाहिए थी। मगर ये कौन सा घर बना दिया हमने, जिस घर
से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी, जिस घर से नमाजों के पहले होने चाहिए थे, जिस घर पे सिर्फ दीन की बात होनी चाहिए थी, सिर्फ मुस्तफा के घर की बात होनी चाहिए थी, वहाँ बात होती है कैटरीना कैफ की, वहाँ बात होती है सलमान खान की, वहाँ होती है बॉलीवुड के अदाकारों की। मेरी बेटी 1 महीने का रोजा रखने के बाद जाती है शॉपिंग करने के लिए, बोलती है करीना का प्लाजो चाहिए, करीना का शरारा चाहिए। उसमें लड़की से पूछ, 1 महीने का रोजा रखा अपनी बेटियां बर्बाद करने जा रही है, तुम्हें तो अपने बाप से करना चाहिए था। नबी ये कमेंट करते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है मुस्तफा कहते हैं, और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है मुस्तफा कहते हैं। जब दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो बाजार किस मुंह से जाऊंगी? मैं बाजार नहीं जाऊंगी। अपने अब्बा हुजूर से कहना चाहिए था, मेरे अब्बा हुजूर बाजार में नहीं आप चाहिए, और मुझे करीना का प्लाजो नहीं वक्त प्लाजा दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा बर्बाद करती थी। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुल्तान। ऐसे लोग होने चाहिए जब आलिमों से मिले, आलिमों से मिलने के बाद चौबे पे शादा भी होनी चाहिए, इस एहसास के साथ मिले कि ये मुस्तफा के दीन का काम करने वाले लोग हैं, नबी ये कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ये आप चल रहे हैं, कश्ती अगर पानी के ऊपर चले तो कश्ती डूबेगी नहीं, कश्ती बची रहेगी, लेकिन कश्ती के अंदर अगर पानी आ जाए तो फिर कश्ती के डूबने के इम्कानात है। हम दुनिया में रहे, हम इसके लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, मगर दुनिया हमारे अंदर आ जाए फिर हम दुनिया में डूब जाएंगे। ये दुनिया समंदर है, हमको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई हमारा मसीहा नहीं है। तुम किसके भरोसे पे बैठे हैं लोग? तुमको लगता है कि वो पार्टी जीत जाएगी तो हम बच जाएंगे, वो पार्टी हार जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुमने देखा नहीं बंगाल में तुमने नहीं देखा टीएमसी जीत सकता सत्ता पे तो लोगों को लग रहा था कि टीएमसी है तो हम हैं, अब बीजेपी आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। कोई तुम्हारा परेशानी हाल नहीं है। टीएमसी ही सत्ते पर थी तो तुम्हारे कितने बच्चों को सर्विस मिल गई, तुम्हारे कितने बच्चों को नौकरी मिल गई, तुम्हें चार पकौड़ा देकर तुमको फुसलाया गया, तुमको भड़काया गया, तुमको तुम्हारा इस्तेहसाल किया गया। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ये सत्ते के नशे में पागल लोग हैं, इनको सत्ते की भूख है। ये काफिर से लड़ रहे हैं, कुफ्र को कुफ्र से लड़ने दो। तुम बैठ करके तमाशा देखो, तुम्हारा कोई मसीहा नहीं है, न ममता तुम्हारे लिए मसीहा है, न कोई दूसरा नेता तुम्हारे लिए मसीहा है, न राहुल गांधी तुम्हारे लिए मसीहा है, कोई पार्टी तुम्हारे लिए मसीहा नहीं है। तुम्हारा अगर कोई मसीहा है तो वो मदीने में जो सुल्तान लेते हुए है वो तुम्हारे मसीहा है। तुमको उनको याद करनी चाहिए। रमजान में चार पकौड़ा दे करके, इतना पार्टी दे करके तुम्हें बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और तुम कुत्ता पकड़ करके नेता के पीछे घूमते हो। कौन है वो नेता? उसे कह दे मैंने रोजा खुदा के लिए रखा है, जिस खुदा ने मेरे लिए